हेलो हाय नमस्कार बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे मोशन चैप्टर की हमने ये तीन चीज़ें कवर किए थे। मोशन, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? वी हैव रेड an object when changes its position from one place to another with respect to time, then it is referred to as motion. And we have read about its types, that is uniform motion and non-uniform motion. When an object covers equal distances in equal intervals of time, then it is referred to as uniform motion. When an object covers unequal distances in equal intervals of time, then it is referred to as non-uniform motion. तो फिर बाद में हम क्या पढ़े थे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या बोलते हैं? Scalar quantity says when a measuring unit has only magnitude, no direction, then it is referred to as scalar quantities. Okay, so it is, example is mass. We have taken mass, speed, distance. Okay, when we will move on to vector quantity. Vector quantity defines that when an measuring unit has both magnitude and direction, then it is referred to as vector quantity. Its example we have given: force, weight, displacement, velocity, etc. Now then we have gone through 7 points of differentiation in between distance and displacement. Distance, the total or actual path covered by an object. Displacement, the shortest path covered by an object. Distance is the scalar quantity, while displacement is the vector quantity. Distance can never be zero, displacement can be zero. Distance is always positive, displacement can be positive and negative. Can be both positive and negative. Distance is independent, but displacement is dependent. Okay, distance is always greater than or equal to displacement. Displacement is always less than or equal to distance. Okay, so now we will move on to speed, and then by today's class we will complete speed, its types, velocity and its types, acceleration and its types. Okay, so speed. What is speed? The total distance covered by an object per unit time is referred to as speed. Here we have a flow chart with the definition of speed. The total distance covered by an object per unit time is referred to as speed. It has three types: uniform speed, non-uniform speed and average speed. Same definition as uniform motion, non-uniform motion, but the definition of average speed is a little change. So let us move on to some other points of speed. Speed is a scalar quantity. Okay, speed has its speed का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो है मीटर पर सेकेंड, और इट इज रिटन एज ms inverse 1. Okay, then we will move for the types of speed. स्पीड का अदर यूनिट भी है, वो है सीजीएस यूनिट में, एमकेएस यूनिट में, दैट इज किलोमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड एटसेट्रा. अगर आपको एक स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड पे दिया है और आपको उसके कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड पे दिया है, आपको किलोमीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करना है, तो आपको देखिए क्या करेंगे आप, 5/18 मीटर पर सेकेंड अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, समझ में आया? अभी जाते हैं स्पीड के डिफरेंट टाइप्स के लिए. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal intervals of time, then it is referred to as uniform speed. When an object covers non-equal distances in equal intervals of time, then it is referred to as non-uniform speed. Okay, similarly average speed has the definition: the total distance
the total distance covered by an object. Okay, the total distance covered by an object per unit time is referred to as average speed. Average speed has a calculation. Before that, let us know how can we calculate speed. So speed s is equal to d distance. Let me write it in full form. Speed s is equal to d distance by time t. Okay, now we will move for the velocity. Velocity, what says velocity? So we have completed the speed. Okay, now we are moving for velocity. Velocity क्या बोलता है? Velocity का definition है the total displacement per unit time. Yes or no? Displacement के मतलब पे हमें मना है, हम जानते हैं the shortest distance covered by an object is referred to as displacement. Distance क्या है? Total और actual path covered by an object. So इधर हम जो speed का फॉर्मूला निकालते हैं वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय टाइम। वेलोसिटी में हम क्या करेंगे उसका उल्टा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन, देन वी विल मूव फॉर इट्स अदर पॉइंट्स। लेट मी यूज अनदर कलर, दैट इज ग्रीन कलर। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? आइए जानते। हम जानते थे कि डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी के साथ अगर उसका लिंक है वो भी है एक वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर इधर देखेंगे, हमने स्पीड पे लिखा था स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के साथ लिंक है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी मींस स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज displacement is vector quantity means velocity is vector quantity. How we will remember which one is scalar quantity, which one is vector quantity? Speed starts from s, scalar starts from s. So speed is scalar quantity. Velocity starts from v, vector starts from v. So it is vector quantity. Velocity is vector quantity. Is it to remember? Remember it. Print it in your mind. The second point of this velocity is the SI unit. It is also meter per second, written as m by s or ms minus 1. Okay, now we will move for its types: uniform velocity, non-uniform velocity, and average velocity. So what is uniform velocity? Same definition. A single change, the total displacement by an object per unit time is referred to as velocity. So its uniform speed velocity is defined as when an object covers equal distances in equal intervals of time. When an object displaces equally in equal intervals of time, then it is referred to as uniform velocity. When an object displaces unequally in equal intervals of time, then it is referred to as non-uniform velocity. Okay, now we will moving on average velocity. Average velocity क्या होता है ना? Average velocity है when an object covers unequally, that is in non-uniform velocity, then it will have cover different distances in a different time. अगर मान लीजिए, हम डेफिनेशन को बाद में जाएंगे, एक गाड़ी यहां से आपके घर तक गया,
तो वो रास्ते में अनइक्वल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है। क्यों? उसको ट्रैफिक है, कहीं वो ब्रेक दे देता है, कहीं वो स्लो हो जाता है, रास्ते में ट्रैफिक होता है। तो हम यूनिफॉर्म स्पीड पे कहाँ जा सकते हैं? ओनली हम नेशनल हाईवे पे जा सकते हैं। देखिए, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे जाते हैं तो हमारा एक एवरेज वेलोसिटी आता है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे जाने से एवरेज स्पीड आता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जाने से एवरेज वेलोसिटी आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो जानेंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है? इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैंने बताया अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता है तो ही एवरेज वेलोसिटी आएगा। सो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, average velocity is defined as the ratio of the total displacement of an object to the total time covered. Okay, simply we can write total displacement velocity is equal to total displacement, sorry, velocity is equal to displacement, velocity v is equal to displacement d by time t. Okay, but here I have missed one point. I have not said, that is average speed. If anyone have pointed out, please let me know in the comment section. So average speed क्या होता है? Average speed को हम लिखेंगे total distance by total time. सिमिलरली हम इसको भी लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. ओके और नॉट? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. Okay, so you are all clear regarding speed, its types, velocity and its types. Now we will move on to acceleration. स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अगर किसी का कुछ डाउट है तो हमें बता दें. तो अभी हम मूव करेंगे वेलोसिटी से एक्सीलरेशन. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड मोशन, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ वी विल मूव ऑन टू एक्सीलरेशन. बेटा एक्सीलरेशन क्या है? हमारे गाड़ी में एक एक्सीलरेटर होता है. जो भी व्हीकल हो उसमें एक एक्सेलरेटर होता है. साइकिल में तो हमारा पैर ही हमारा एक्सेलरेटर होता है. साइकिल हो, रिक्शा हो, वो तो हमारा पैर ही हमारा एक्सेलरेटर है. हमारा पैर जितने जोर घूमेगा वो इतने जोर साइकिल चलेगा. लेकिन मैं बोलता हूँ बाइक, उसमें राइट हैंड में एक एक्सेलरेटर होता है. हम अगर देखेंगे कार, बस, ट्रक, उसमें एक एक्सेलरेटर होता है पैर के पास.
ऐसे होता है एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। जिसको हम एबीसी के नाम पे जानते हैं। हमारे ड्राइवर ट्रेनिंग लोग जब एबीसी बोलते हैं तो ये एबीसी है, एक्सीलरेटर। ठीक है, तो आप मान के चलिए एक्सीलरेटर का मतलब क्या है? एक्सीलरेटर से एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेटर से जब एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेटर को हम जितना दबाएंगे वो इतना एक्सीलरेट करेगा, हमारा स्पीड इंक्रीज होगा, गाड़ी रन करेगा, रन करने से एक्सीलरेट। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का हम अभी डेफिनेशन जानेंगे। बेटा एक्सीलरेशन का डेफिनेशन बोलता है the rate of change of speed is defined as acceleration rate of change of velocity is referred to as acceleration। समझ में आया? और इसको हम क्या बोल सकते हैं? द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, सो एक्सीलरेशन को जाने से पहले, ठीक है, एक्सीलरेशन का आगे तो हम उसको कंप्लीट करते हैं फिर जाएंगे। एक्सीलरेशन का और भी पॉइंट है, इसका ये है डेफिनेशन। अगर और एक डेफिनेशन चाहिए तो मैं वो भी लिख देता हूं। और एक डेफिनेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी पर only this much is the definition. Then you will write is referred to as referred to, is called, is defined as, you will have to write. So here it is the definition, rate of change of velocity or change of velocity per unit time. Then moving on to other points of acceleration. Acceleration is the vector quantity. ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी हुआ? हमने डेफिनेशन पे क्या लिखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से लिंक हुआ। वेलोसिटी क्या था पता नहीं, भूल गए। वेलोसिटी का लिंक था डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वो वेलोसिटी भी हुआ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर होने से एक्सीलरेशन भी हुआ वेक्टर क्वांटिटी। पता चला भी। और एक तरीके भी हम बताए थे, v से वेक्टर, सो वेलोसिटी इज वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर मतलब एक्सीलरेशन भी है वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ms2। मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्पीड और वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रिंट इट इन योर माइंड। अब देखेंगे एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल a से।
डिनोट का मतलब क्या है हमें तो मालूम नहीं भाई साहब। आपको घर में आप बुलाया जाता है, आपका नाम है सपोज बबलू, ठीक, लेकिन आपको घर में बबलू बुलाया जाता है क्या? आपको बुलाया जाता है ए बेटा सुनना, ए बाबू सुनना, जब आपको बुलाया जाता है। वैसे ही इसको भी बुलाने के लिए एक शॉर्ट टर्म है, जैसे हम स्पीड में लिखे थे s इज इक्वल टू स्पीड, s इज इक्वल टू डिस्टेंस d, तो डिस्टेंस का डिनोशन है d, स्पीड का डिनोशन है s, टाइम का डिनोशन है t। Similarly, acceleration is denoted by small a. Moving on to the formula of acceleration. A is equal to v minus u by t. Okay. What is v? What is u? What is t? Note it down. V is equal to final velocity. U is equal to initial velocity. T is equal to time. A is equal to acceleration. This must be remembered by you all. ताकि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे वैल्यू पुट करते टाइम हमें प्रॉब्लम ना हो। जब हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में v इज इक्वल टू दिस, u इज इक्वल टू दिस, t इज इक्वल टू दिस, तो हम कर लेंगे। लेकिन जब वहां पे लिखा जाएगा the final velocity of an object is this and the initial velocity of an object is this and the time taken by the object to reach on there is this, then आपको वैल्यू पुट करना नहीं आएगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा फॉर्मूला के साथ, ठीक है। ये था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का अभी और कुछ पार्ट बाकी है, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी बाकी रहा। लेकिन हम एक क्विक समराइज करेंगे फॉर्मूलाज का। टिल टुडे द फॉर्मूलाज वी हैव गॉट, उसको लेके हम समराइज करेंगे। आप ब्लू क्वेश्चंस को और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कवर कीजिए। हम आएंगे अगले क्लास, लेकिन उसके पहले फॉर्मूला को नोट कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। We are back. Your break is completed. Let's move on to the formulas. हमने पहले पढ़ा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड s is equal to distance d by time t. Velocity v is equal to displacement d by time t. Acceleration a is equal to final velocity v minus initial velocity u by time t. The end.
थैंक यू। तो हम अगले क्लास मिलेंगे। ये अगर आपको चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर डाउट्स क्लियरिंग क्लास चाहिए या एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो मैं बोलिएगा। अगले क्लास हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन का टाइप्स, and then we will move on graphical representation of motion, equation of motion. Okay, after that only one class will be needed, so by 4 classes we will complete the entire chapter motion. Now bye bye to everyone, thank you। अगर आपको हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबा लीजिए। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपको 7:20 PM के आसपास आपको वीडियो आ जाएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा और हम क्विक कंप्लीट करेंगे। हम 1 शॉट वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन पहले हमें चैप्टर कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।